Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website. रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मंशियात के खात्मे के लिए तालीमी इदारों में अखलाकियात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। हैदराबाद के JNTU में स्टूडेंट वॉलंटरी पॉलिसिंग प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर मुखातिब करते हुए मंशियात के इस्तेमाल को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तालीमी इदारों में अखलाकियात को फ़रोग़ देने को कहा है और महकमा पुलिस को भी हिदायत जारी की है कि वो तमाम इंटर और डिग्री कॉलेजेस में रियासत केरला की खतूत पर मंशियात के खात्मे के लिए एक निज़ाम कायम करें। అందుకే ఈరోజు కేరళలో ఇంతకుముందే మా అధికారులు చెప్తున్నారు, నేషనల్ పోలీస్ సర్వీస్ అని NSSలోనో పోలీసింగ్ సర్వీస్ కూడా, అంటే విద్యార్థులను పోలీసింగ్ చేసేటట్టు కూడా కాలేజీలలోనే వాళ్ళని ఎంపవర్ చేసి వాళ్ళకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే విధానాన్ని కేరళలో తీసుకొచ్చేందుకు చాలా సక్సెస్ఫుల్ మోడల్ అని ఇంతకుముందే మా అధికారులు చెప్తున్నారు. నేను మా డీజీపీ గారికి సూచన చేస్తున్నా, మీరు అన్ని జిల్లాల ఎస్పీలను పిలిచి మాట్లాడండి. ఆల్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ కాలేజెస్లో మ్యాండేట్గా ఆ జిల్లా ఎస్పీలు పోలీసింగ్ సిస్టమ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వీక్లీ వన్స్ ఈ ఎస్పీలు పోయి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళను ఒక బాధ్యత గల పౌరుడిగా, సామాజిక స్పృహ ఉన్న పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ సమాజానికి ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు రోల్ మోడల్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ పొలిటికల్ రోల్ మోడల్స్ తగ్గిపోయినారు రకరకాల కారణాల చేత. కానీ ఇప్పటికీ మనకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ల మీద ఇంకా మన పిల్లలకు, మన సమాజానికి ఒక గౌరవం ఉన్నది, మర్యాద ఉన్నది. మనం ఆ బాధ్యతను తప్పకుండా నెరవేర్చాలి. వీలైతే స్కూల్స్, జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజెస్లో మన జిల్లాల ఎస్పీలను, ఉన్నతాధికారులను, లోకల్ డిఎస్పీలు అప్ టు SI వరకు ఆయా ప్రాంతంలో ఉండే స్కూల్స్, కాలేజీలలో తప్పకుండా వారంలో ఒక 2 గంటలు అక్కడికి వెళ్ళమనండి. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से एहतजाजी तलबा से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता शब किए गए तबसरे पर तलबा ने अशोकनगर समेत कई इलाकों में धरना मुनज़्ज़म किया। रेवंत रेड्डी ने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए DSE इम्तिहान मुलतवी करने के लिए जारी एहतजाज पर कहा कि एक कोचिंग सेंटर का मालिक भी धरना दे रहा है और जब उसे इस्तफसार किया गया तो उसने कहा कि वो इम्तिहान की तारीख को तब्दील करने का मुतालबा इसलिए कर रहा है ताकि उसे 100 करोड़ रुपये मिल सकें। वज़ीर आला के इस तबसरे से नाराज तलबा ने कल रात देर गए अशोकनगर, RTC चौराहा, चिक्कड़पल्ली और इंदिरा पार्क में बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर एहतजाज किया। वज़ीर आला और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। प्लाकार्ड्स के साथ मुजाहरा करने वाले एहतजाजियों ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। उन्होंने DSE इम्तिहान मुलतवी करने, ग्रुप 2 की नशिस्तों में इजाफा करने की मांग की है। याद रहे कि इंतखाबी मौसम के दौरान तमाम सियासी कायदीन बशमूल राहुल गांधी ने भी अशोकनगर का दौरा किया था। तलबा हमेशा हर तहरीक का मरकज रहे हैं, जिसमें तहरीक तेलंगाना भी शामिल है। ऐसे में क्या एहतजाजी तलबा को जाली सियासी मुजाहिरीन या फिर कोचिंग सेंटर के मालिक कहना दुरुस्त है? కోచింగ్ సెంటర్ యజమాని ఆమర నిరాహార దీక్ష చేస్తా అంటారు, పరీక్షలు వాయిదా వేయమని. నేను అడిగిన ఆయన హాల్ టికెట్ ఏముందో తీయరా, దేనికి రాసిండో పాపం మాట్లాడదామని. లేదు సార్, ఆయన కోచింగ్ సెంటర్ ఉంది, ఆయనకు 2 నెలలు పోస్ట్ పోన్ చేస్తే DSE 100 కోట్లు లాభం వస్తుందంట, 2 నెలలు ఆయనకు 100 కోట్ల ఆదాయాన్ని మీరు దెబ్బతీసారట అని ఒక్క ఆయన గురించే చెప్పారు. ఇంకొక ఆయన దీక్ష కూర్చున్నాడు. ఏందే ఆయన మన పార్టీలో ఉండే మనటి వరకు ఆయనేం పరీక్షలు రాస్తున్నాయనంటే, నువ్వు పార్టీలో ఏం ఉద్యోగం ఇవ్వలేదంటే, సార్ ఇప్పుడు నిన్ను
నిన్ను గిల్లడమే ఆయన పని అంటే అందుకే ఆయన దీక్ష కూర్చున్నాడు సార్ అన్న. ఇంకో పిల్లగాడు కూర్చున్నాడు గాంధీ హాస్పిటల్లో చేరాడు. అరే పాపం నాకు తెలిసినోడు ఆ పిల్లగానికి ఏమన్నా కానీ ఏం పరీక్ష రాస్తుండే, అవసరం అయితే స్పెషల్ కోచింగ్ అని ఇప్పిద్దామంటే ఆయన ఏం పరీక్ష రాస్తున్నాడు సార్. ఆయనకు లీడర్ చెప్పిందంటే నువ్వు చేస్తే బాగా పేరు వస్తుంది, నీకు నేను చూసుకుంటా పో అని. నిన్న మన ముగ్గురు దీక్ష చేస్తే ముగ్గురు గురించి వివరాలు తెప్పించినాను. ఆ ముగ్గురులో ఏ ఒక్కడు కూడా ఏ పరీక్ష రాస్తలేడు. भारत राष्ट्र समिति के एमएलए के तारक रामाराव ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से कहा है कि वो झूठे वखार, अना और तकब्बुर को बालाए ताख रखकर बेरोजगारों के मसाइल हल करें। साबिक वजीर व सिरसिला एमएलए केटीआर ने गुज़िश्ता रोज वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे पर नुक्ताचीनी करते हुए उनसे बेरोजगार नौजवानों से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुलाजिमतों पर व्हाइट पेपर जारी करने की भी मांग की है। केटीआर ने पूछा है कि जब इख्तिदार में आकर 7 माह मुकम्मिल हो गए हैं तो हुकूमत 2 लाख खाली जायदादों को किस तरह से और कब पूरा करेगी। साबिक वजीर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो अपने झूठे वखार, अना और तकब्बुर को बालाए ताख रख दें और बेरोजगारों के मसाइल जल्द अज जल्द हल करें। అందుకే ఇవాళ తెలంగాణ యువత బగ్గుమంటున్నది. ఎన్నో ఆశలతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మొదటి సంవత్సరంలో ఇస్తదని చెప్పి ఏ యువతనైతే మమ్మల్ని దించి మిమ్మల్ని గద్దెనెక్కించిందో ఈరోజు అదే యువత నిన్ను ప్రశ్నిస్తున్నది. రేవంత్ రెడ్డికి అందుకే చెప్తా ఉన్నాం, 7 నెలలు అయిపోయింది, 8వ నెలలో నీ ప్రభుత్వం అడుగుపెట్టింది. ఈ 8 నెలల్లో ఒక్క నోటిఫికేషన్ ఇవ్వలేదు. మరి మిగతా 4 నెలల్లో ఎట్లా ఇస్తావు 2 లక్షల ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్లు, ఎట్లా ఇస్తావు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు? జవాబు చెప్పాలని చెప్పి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టాం, శాసనసభలో నిలదీస్తాం, క్షేత్రంలో నిలదీస్తాం. ఏ పిల్లలనైతే నువ్వు మోసం చేసినావో ఆ పిల్లలకు మేము అండగా ఉంటాం. తప్పకుండా ఆ పిల్లలతో ఐక్యంగా కొట్లాడతాం. ఇది ఏదో 2 రాజకీయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పంచాయతీ కాదు, లక్షలాది మంది తెలంగాణ యువతకు వారి భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అంశం కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇకనైనా బేసిజాలకు పోకుండా, అనవసరపు ప్రెస్టేజ్కు ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ పోకుండా, ఈగోకి పోకుండా అహంకారం తగ్గించుకొని ఇవాళ కండకావరంతో మాట్లాడే విధానాన్ని తగ్గించుకొని ఆ పిల్లలకు క్షమాపణ చెప్పి 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్న మాట నిలబెట్టుకునే దిశగా వెంటనే నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వాలని, వెంటనే ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభించాలని, వారు డిమాండ్ చేస్తున్న విధంగా గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3లో పోస్టుల సంఖ్య పెంచాలని, అదేవిధంగా డిఎస్సి విషయంలో కూడా మీరే ఏదైతే మాట చెప్పారో ఆ మాటను నిలుపుకోవాలని. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में श्री नल्ला पोचम्मा मंदिर के जेर एहतमाम मुनक़िद बोनाल तक़रीबात में हिस्सा लिया। शहरीदाबाद के बेगमपेट इलाके में वाक़ प्रजा भवन में बोनाल तक़रीबात मुनक़िद की गई। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इन तक़रीबात में हिस्सा लिया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन पहुंचने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें मंदिर ले गए। वजीर कोंडा सुरेखा और नायब वजीर आला की अहलिया ने नल्ला पोचम्मा देवी को बोनम पेश किया। वुज़रा श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास मजलिस आमिला में शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जेर एहतमाम इजलास मजलिस आमिला बोर्ड के दफ्तर वाक़ मस्जिद झील पियाओ, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MP हैदराबाद ने इजलास में शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर कायद व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अलावा बीबी पर हाजिरी दी। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यौम शहादत के पेश नज़र BRS रहनुमा मोहम्मद महमूद अली ने इतवार को पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा में अलावा बीबी पर हाजिरी दी। उन्होंने बीबी के अलम की जियारत की और फिर ढट्टी भी पेश की। दरियासना शहदाए करबला की कुर्बानियों को भी याद किया गया। इस मौके पर BRS लीडर्स इनायत अली बाखरी, बदरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। खास तौर से हमारी पार्टी के साथ केसीआर साहब जो हमेशा याकूतपुरा आकर BK आलम को धट्टी किया करते थे, आज हम लोगों को बिजाय मुझे और बाखरी साहब को, अरशद भाई को, हमारे बदर भाई को, हमारे लतीफ़ सरपंच साहब को, लायक भाई को, हमारे बाखरी भाई की क़यादत में हम लोग यहाँ पर आकर BK आलम को धट्टी दी है। यकीनन ये हमारे लिए बड़ा गम का महीना है। इस महीने में हम लोग मातम करते हैं, हमारे तमाम शिया भाई गम का इज़हार करते हैं, क्योंकि हमारे इमाम हुसैन की शहादत का 10 तारीख को शहादत हुई है और ये हक़ और बातिल की जंग थी, जिसमें हमें तो दिख रहा है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली करम वजह के बेटे इमाम हुसैन शहीद उमर हक़ के लिए लड़ते हुए शहीद हुए और यहाँ पर हक़ की जीत हुई। इसलिए सारी दुनिया उसको नज़ीर की तरह मानती है और हक़ की फ़तह के लिए, हक़ की जंग में हमेशा हक़ का साथ देने का इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें जो रास्ता बताया उस पर हम कायम रहते हैं। और हम आज डिमांड भी करते हैं हुकूमत से, इस वक्त की अच्छे से अच्छे इंतजाम हर हुकूमत करते आ रही है और इस साल भी इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे। पर BK आलम हाथी के लिए हमारा भी प्रपोजल था कि उसे ख़रीद कर यहाँ पर ज़ू में रखा जाए। ज़ू कंजर्वेटर से भी हमने बात की थी इससे पहले, अगर एक नौजवान अच्छा जवान हाथी खरीद लेंगे जो कम उम्र हो, आहिस्ता आहिस्ता उसे तरबियत दी जाए तो BK आलम के लिए और ख़ास तौर से तेलंगाना में दूसरे जो तकारीब होते हैं बोनाल वोनाल उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मुहर्रम का महीना हमारे लिए बड़ा गम का महीना है। हम इसमें मातम करते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की याद करते हैं। उन्होंने हक़ का साथ देते हुए अपनी जान भी कुर्बान की। यजीदों ने उन्हें पानी पिलाया, पानी तक पीने नहीं दिया, इस तरह हमारे साथ जुल्म किया गया। और यहाँ के जो मुतवल्ली साहब हैं मरहूम आरिफ साहब बरसों से खिदमत करते हैं। आज उनके भाई साहब हैं ज़की साहब और उनके साहिबजादे एजाज साहब, ये लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनसे हम यही गुजारिश करें कि आप जिस तरह अच्छी तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसका सिलसिला जारी रखिए। और जो प्रेजेंट हुकूमत भी है कांग्रेस की, वो भी आपके साथ रहेगी। और हम लोग जो साबिक़ा में भी बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, इंशाल्लाह हम भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने अलावा बीबी दबीरपुरा पर हाजिरी दी। यौम आशुरा के पेश नज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार MLA मीर जुल्फिकार अली और याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आज अलावा बीबी दबीरपुरा पर हाजिरी दी और बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी व दीगर भी मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए MLA मीर जुल्फिकार अली ने बताया कि आवाम को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यौम आशुरा के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के लिए हाथी शहर हैदराबाद पहुंच गया है और
10 मुहर्रम को यौम आशुरा के दिन बीबी के अलम का जुलूस हाथी पर ही निकाला जाएगा। उनका कहना था कि बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हुकूमत तेलंगाना से कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में ये मुमकिन हो पाया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन MP हिदायत पर मैं और जाली जनाब जाफ़र हुसैन मेरा साहब MLA रियाजुल हसन अफंदी साहब रुकने कौंसल आज बीबी के अलावे पर आकर और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पर जो लोगों में तशवीश थी कि हाथी जिसके बेटा ने सुप्रीम कोर्ट में दिल डाल कर उसको रुकाया था, उसके लिए यहाँ से सदर मोहतरम ने हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब से कहा। उन्होंने यहाँ से अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को और वंगपोर्ट के लोगों को ना सिर्फ तेलंगाना के बल्कि आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर जाकर उस हाथी का टेस्ट किए, हाथी का मुआयना किए और वहाँ के डॉक्टर्स ने कहा कि हाथी जाने के काबिल है। उसके बाद कल 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बहस हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हाथी को आने की इजाज़त मिल गई और आज हाथी हैदराबाद में आ चुका है। इसके लिए सदर मोहतरम ने जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब को भेजा। इन्होंने हैदराबाद से बेलारी जाकर पूरा काम इन्होंने किया। मैं इन चीज़ों से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाथी हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन वो जमात है कोविड के दौरान भी सारी दुनिया में कहीं पर भी मुहर्रम का जो नहीं मनाया गया, लेकिन हैदराबाद एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर मुहर्रम का जुलूस भी निकाला गया। बी के अलम का हैदराबाद में मुहर्रम मनाया गया था। मजलिस इत्तेहाद में हमेशा नुमाइंदगी करते रहती है। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा है। मजलिस बचाओ तहरीक के एक वक्त ने बीबी के अलावा दबीरपुरा पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। हर साल 7 मुहर्रम को मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से अलावा बीबी पर हाजिरी दी जाती है और ढट्टी का नजराना पेश किया जाता है। उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने दबीरपुरा पहुंचकर बीबी के अलम पर ढट्टी पेश की और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। बताया गया है कि बादशाही आशुर खाना अलावा सरतो खदम रसूल अज़ा खाना जहरा वो दीगर अलावजात पहुंचकर भी MBT वक्त ने जियारत की और ढट्टी का नजराना पेश किया। माह मुहर्रम के पेश नज़र हर साल की मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से 7 मुहर्रम के दिन बीबी का अलावा पहुंचकर बी के अलम को ढट्टी चढ़ाई जाती है और जो मरहुमीन जो शहीद है उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। ये सिलसिला गाजी मिलत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के दौर से चला आ रहा है। और रही बात जो मुहर्रम के इंतजामात की, ये जब मरहूम गाजी मिलत तहरीक बनाने के बाद में पहली मरतबा 1994 में जब याकूतपुरे की जिम्मेदारी मजलिस बचाओ तहरीक को दी गई थी, तो उस वक्त सबसे पहले खान साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था कि मुहर्रम के इंतजाम जो है सरकारी तौर पर होनी चाहिए। जैसा दूसरे जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको जैसा गवर्नमेंट की तरफ से, तो पहली मरतबा उस वक्त जो है मुहर्रम बजट का क़याम अमल में आया गया था। लेकिन हाँ, चलते चलते जो है मुहर्रम बजट जो है ये कुछ लुटेरों के हाथ में आ गया है, जो मैं इंकशाफ किया हूँ थोड़े दिन पहले। इंशाल्लाह मुहर्रम होने के बाद में हम उसके ऊपर जो है पूरा विजिलेंस की इंक्वायरी करवाएंगे कि आपको जानकर हैरत होंगी कि जो बीबी का अलावा है इसका पूरा मेंटेनेंस जो है निज़ाम ट्रस्ट की जानिब से किया जाता है। सिर्फ एक लाइट जो है अंदर जो लाइट लगाते पिछले 40 साल से एक सईद भाई बोलकर लगाते थे, उनका इंतकाल हो गया। ये बेचारे उनके बेटे हैं, सईद भाई के बेटे हैं, ये जो लाइट फ्री अपने तौर पर लगवाते हैं। लेकिन लाइट का बिल जो है
कोई एक शख्स उठा रहे हैं कि हम लाइटा लगा रहे हैं बोल के बल्दिया में, एक कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें उठा ले रहे हैं। और जो ऊपर शेड डाला गया है उसके लिए 30 लाख रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, लेकिन बमुश्किल वो एक 4-5 लाख रुपए का काम है। फिर अलग 24,50,000 रुपए बी के अलावे के लिए सैंक्शन हो रहे हैं हर साल। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? पिछले 3-4 साल का जो भी इसका है विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट की तरफ से, क्योंकि एक बेहतरीन ऑफिसर CV आनंद जो पहले एंटी करप्शन में थे, अब उनको वहां पर पोस्ट किया गया है। बल्दिया के कौन ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, कौन कंट्रैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, आप देखिए। पिछले 9 साल में मोहर्रम को बिल्कुल या तौर पर BRS की गवर्नमेंट में नेग्लेक्ट किया गया था। कभी चीफ मिनिस्टर एक मरतबा आए नहीं यहाँ पर, वो बेचारे एक महमूद अली साहब को भिजा देते थे। हमें बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस की गवर्नमेंट से कि इस साल जो है बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी की नजर से बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट है बलदिया, इलेक्ट्रिसिटी, कल रात में 6 घंटे लाइट बंद थी नूर खां बाजार में, आपको मालूम होना चाहिए। वक्फे वक्फे से फ्लक्चुएशंस आ रहे पावर में, क्योंकि दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर मोहर्रम देखने के लिए और मंजालिस को अटेंड करने के लिए। तो इन तमाम चीजों के लिए क्यों इसमें लापरवाही हुई है, कहां पर इसके लिए लापरवाही हुई, मोहर्रम के बाद में हम बराबर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आने वाले साल के मोहर्रम में जो भी काम रहेंगे 1 महीना पहले कंप्लीट हो जाना, 1 महीना पहले पूरा काम मुकम्मल हो जाना, कंट्रैक्टर्स को एरिया से निकाल देना। यहाँ पर क्या हो रहा, 3 मुहर्रम के दिन 4 मुहर्रम के दिन कंट्रैक्टर अंदर आ रहा आशुर खाने में। तो खैर बहुत सारे चीज़ें हैं, ये वक्त नहीं है बोलने का, क्योंकि हम लोग पूरा अभी बीका अभी अलावे सरतुख जाना है और बहुत सारे जगह नाले मुबारक है, बादशाही आशुर खाना है। इंशाल्लाह 1-2-3 दिन में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलूंगा। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर की दत्तात्रेय कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान ने कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन से मुलाकात की। जराये ने बताया कि दत्तात्रेय कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द ने इतवार को कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुसलाम पहुंचकर नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया, उन मसाइल को हल करने की दरख्वास्त की। MLA माजिद हुसैन ने दत्तात्रेय कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से पेश किए गए मसाइल को बगौर सुना और उन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर एसोसिएशन की जानिब से MLA को तहनीयत भी पेश की गई। नोटेड करके 58 कट्स निकालने लगा है सब गार्डनिंग में, तो गार्डनिंग के नियम आउटसाइड हमारा क्या कर रहे हैं 10 दिन को 20 दिन आपका जैसा बोले, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आप लोग का घर है, आप जो बेस्ट है वो आप लोग बोलो, मैं वैसा बोलूँ। आप बोले फुटपाथ डेवलपमेंट, आप ना बोले रोड टू वॉल रोड बोले तो वॉल टू वॉल रोड का एस्टिमेशन आप ना किसे हमारे कहानी को क्या है, सब करीब करीब अपने को तो डेवलपमेंट रुके 10 साल हो गया, कुछ भी नया मामला नहीं है। सिर्फ लास्ट ईयर है कि आप लोग आज आए ना, ये महीने आप ना कभी आपका काम लेके दारुसलाम को आप आए। जी सर आप एक बोले ये वीक में ना सीवरेज का पूरा काम स्टार्ट करो। ओके सर, थैंक यू अब मैं फिलहाल इमीडिएट सीवरेज का काम, सीमेंट के रोज का मैं कैसा उसका तो आपको आप और मैं मिलकर करिए, थोड़ा आप और मैं मिलकर रहे तो उसमें अंदाजा भी होता। आप एक एस्टिमेशन बना लेंगे, जोनल कमीशन का लेगा तो वो आपको विजिट भी करा, वो जो प्रोसीजर है था वो टेंडरिंग का ये वो उसको ही नहीं मिला, बट सीवरेज तो इमीडिएट ये वीक में हम स्टार्ट करा। आप एक कहाँ का है वो आपने पूरा प्लान करके बता। कल मैं हुआ तो मूसा भाई के साथ ये प्रोजेक्ट वाला उद्देश्य आप लोग एक राउंड मार के कर लो, ये वीक में सीवरेज का काम। बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से किशनबाग इलाके में कल रात देर गए मिशन चबूतरा के तहत कार्रवाई की गई। हैदराबाद में जराइम की वारदातों में इजाफे पर पुलिस मुतहरिक नजर आ रही है। रात में पेट्रोलिंग की जा रही है, गाड़ियों की तलाशी लेने का काम और ऑपरेशन चबूतरा भी जारी है। बहादुरपुरा पुलिस की जानिब से किशनबाग इलाके में कल रात देर गए मिशन चबूतरा चलाया गया। मंशियात की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस को गाड़ियों की और राहगीरों की तलाशी लेते हुए देखा गया।
Bright smiles, big dreams. Witness MS Creative Kids celebrate Graduation Day. 3 days of dazzling performances, heartwarming tunes, and vibrant cultural unity. Our nurturing community fosters creativity, learning, and growth. Join MS Creative Kids. Enroll your child and unleash their potential. Spark their imagination and empower them to reach for the stars. For more details, please visit our website.